Welcome to the video series of Multimedia and Applications. I'm Kavita Dangwal, and today we are going to start with our second lecture or second unit that would include the following topics: stages of multimedia project, requirements to make good multimedia, multimedia hardware and Mac and Windows production platform. So basically, we have already discussed that what is multimedia. It is a combination of multiple elements that we combine and create a sort of application that is interactive enough so that we can specify or represent our data in a more interactive way. So what it says is a multimedia presentation is made on a computer to communicate something using text, animation, audio, video, and graphics in a way that the audience can choose individualized pathways through the material. A number of individuals, each specializing in one or more aspects of the project, must work collaboratively toward a shared goal. Now, when we talk about creating a multimedia application, there are a number of personals or individuals that are responsible for handling different multimedia elements. For example, the person for handling or managing audio would be expert in managing different areas in audio editing or audio processing. Similarly with the video and other elements. So here is a basic architecture or a hierarchy of how in an organization different people are responsible for creating different roles. So project manager at the top, the person is responsible for managing the entire project basically. That will keep track of all the basic elements or all the basic we must say modules that are going to be implemented in that particular project. Then we have project administrator. So it will be the one who will be assigning the different roles or who will be responsible for managing how an application is to be established, and that would create different strategies regarding that particular project. uh, of course with the help of project manager himself. Then comes designer, under which comes artist and photographer. So basically that would be the one that would be managing the designing content, that is how our multimedia would be represented, basically किस तरीके से दिखेगा हमारा multimedia project. Then animation producer, if we want to add any sort of animation in our project, so animation producer. Then audio producer, if we are involving audio in it. Then media author, that would include the different aspects of like for example text itself, if there is some article or written content. So here is the description of the planning of multimedia project. So planning involves development process. First of all, डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ प्लान योर प्रोजेक्ट. किस तरीके से हम अपने प्रोजेक्ट को प्लान करते हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं: आउटलाइनिंग द शेड्यूल, पर्सनल, बजट एंड इक्विपमेंट नीड टू डेवलप द कंटेंट. कितना टाइम लगेगा, कौन कौन लोग उसमें काम करेंगे, कितना पैसा लगेगा, क्या क्या हमें रिसोर्सेज चाहिए उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करने के लिए. तो बेसिकली इसमें प्लानिंग आ जाता है बिकॉज before we actually start implementing or working on a project, it is first need to be identified what all things are needed uh, in order to क्रिएट आर प्रोजेक्ट. सो डेवलपमेंट प्रोसेस में बेसिकली हम डेफिनेटली पहले प्लानिंग करेंगे. देन प्रोटोटाइप योर मॉडल और टाइटल. So title is represented for the project itself. So prototype and test your ideas for usability before proceeding to ensure the quality of the title. यानी कि अगर हम अपना प्रोजेक्ट बनाए तो जिस तरीके से हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में प्रोटोटाइप मॉडल आता है कि पहले हम देख लें कि किस तरीके से हमारा प्रोजेक्ट चलेगा, किस तरीके से हम एक्चुअल में उसको बनाने वाले हैं. तो एक तरीके से उसका पहले एक प्रीव्यू ले लेना कि किस तरीके से ये पूरा प्रोजेक्ट हमारा एक्चुअल में बन के तैयार होने वाला है. Then develop the content using specification and design as blueprints. Team can develop the content and media effects for the title. अब उसमें क्या क्या चीज़ें हम एडिशनल उसमें यूज़ करने वाले हैं चीज़ों को स्पेसिफाई करने के लिए. फॉर एग्जांपल अब हमें इसमें
साउंड भी इनबिल्ट करना है, कहाँ पर हमें इमेजेस का प्रॉपर यूज़ करना है, कहाँ पर एनिमेशन को हमें यूज़ करना है। सो बेसिकली सारे कंटेंट्स को हम इनबिल्ट करेंगे। देन ऑथर द टाइटल, इंटीग्रेट द कंटेंट एंड मीडिया इनटू इट्स फाइनल फॉर्म इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड importing file dependent on software product that is being used to create the title। यानी कि अब सारे के सारे जितने भी कंपोनेंट्स को हमने बनाया है उनको मर्ज करना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से, जिससे कि हम अपने ओवरऑल प्रोजेक्ट को मैनेज कर पाएँ अपने उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जिसमें हम उसको चलाने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग। देन टेस्ट द टाइटल। अब जब हमने बना लिया है तो इट इन्वॉल्व्स द प्रूफ रीडिंग द कंटेंट ऑन स्क्रीन, चेकिंग द टाइटल्स टेक्निकल परफॉर्मेंस एंड वेरीफाइंग दैट द टाइटल वर्क्स ऑन डिफरेंट हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशंस। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि जब हमने अपने प्रोजेक्ट को बना लिया है तो एक्चुअल में हमने उसमें जो चीज़ें डिज़ाइन की हुई हैं, चाहे वो हमारा कोई भी कंटेंट है वो ठीक तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। टेक्निकल परफॉर्मेंस उसकी चेक करना, जहाँ पर भी हमने कुछ भी अपना टेक्निकल पोर्शंस इनबिल्ट किए हुए हैं वहाँ पर चेक करना प्रॉपर चल रहा है, वॉइस हमारी मैच कर रही है या नहीं, जो वीडियो हमने बैकग्राउंड में डाला है या इमेज या कंटेंट हमने बैकग्राउंड में डाला है मैच कर रहा है या नहीं। देन इमेजेस हमारी प्रॉपर हैं या नहीं, ब्लर तो नहीं है कहीं पर। एंड वेरीफाइंग दैट द टाइटल वर्क्स ऑन द डिफरेंट हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशंस, दैट इज़ जो भी जिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए हमने उसे बनाया है वो उस प्लेटफॉर्म पे प्रॉपरली चल रहा है या नहीं चल रहा है। Prepare the title for distribution, that is building a master copy of the title। master copy organizes all the files in the title together for easy retrieval। फाइनली जब वो बन के तैयार हो गया तो अब हमें उसकी एक मास्टर कॉपी बनानी पड़ेगी जो एक्चुअल में एक फाइनल कॉपी की तरीके से होगी कि अब ये हमारा फाइनल प्रोजेक्ट है, बेसिकली जैसे हम अपने किसी सॉफ्टवेयर को बना के एक ड्राइव में सेव कर देते हैं। देन वी हैव प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन। इसमें हमारे पास आ जाता है फर्स्ट पॉइंट इज कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली इसमें हम प्रोजेक्ट को देख सकते हैं एक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, यानी कि जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसका मोटिव क्या है बनाने का। सो इट कैन बी व्यूड इन 3 वेज, ऑडियंस, पर्पस एंड कंटेंट। ऑडियंस में क्या आ जाता है, स्पेसिफाइंग प्रोजेक्ट एज पर द ऑडियंस इज अ मस्ट इन ऑर्डर टू हैव एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हमें ये देखना पड़ेगा कि हम जो प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं वो एज पर दी ऑडियंस है या नहीं है। दैट इज ऑडियंस ने जो रिक्वायरमेंट्स रखी थी या जो स्पेसिफिकेशंस रखी थी हमने उसके अकॉर्डिंग ही अपने प्रोजेक्ट को बनाया हो। Purpose, delivery the purpose of your project accurately is crucial to specify the intent, whether to educate, entertain, inform or pursue the audience। that is हमारे प्रोजेक्ट का या हमारे जो भी मल्टीमीडिया एप्लीकेशन हमने तैयार की है उसका पर्पस क्या है। फॉर एग्जांपल कुछ एप्लीकेशंस हमने ऐसे डिज़ाइन कर दी जो पर्टिकुलरली हमारे शॉपिंग के लिए थी, लेकिन उसमें हम देख रहे हैं शॉपिंग के अलावा हमें एडवर्टीजमेंट ज़्यादा दिख रहे हैं या कुछ भी ऐसा जिसमें हमें ज़्यादा इंटरेक्शन करने को नहीं मिल रहा है, जो एक्चुअल में बनाना चाह रहे थे उसका उसमें हमें कम इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए हमने उसे बनाया है, अगर हमने किसी एप्लीकेशन को एजुकेशन पर्पस से बनाया है तो वहाँ पर वो रिप्रेजेंट होनी चाहिए कि हम इसमें एजुकेशन पर्पस के लिए ही इसको इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं, या एंटरटेनमेंट के लिए बनाया है तो एंटरटेनमेंट के लिए ही यूज़ कर रहे हैं। Then we have content. Content drives the effects such as graphs and charts may indicate the growing or shrinking phase. Pictures can help in visualizing the story. Videos can reveal a process and so on। अब हम जो उसमें कंटेंट ऐड करने वाले हैं, फॉर एग्जांपल वॉइस अगर मैं डालने वाली हूँ तो उसका कुछ इफेक्ट होना चाहिए। दैट इज़ वाई हैव इनबिल्ट द वॉइस। ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ इंटरैक्टिव बनाने के लिए उसमें वॉइस ऐड करनी है, बट उसका कुछ मोटो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने अपना कोई भी एक गेम की एप्लीकेशन बनाई है तो उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक अगर मैं दे रही हूँ तो ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कहीं पर बुलेट शूट करनी है और वहाँ पर बुलेट की आवाज़ आती है तो वो एक अच्छा इफेक्ट देगा। तो इसी तरीके से हम अगर अपने कंटेंट को अपने मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर रहे हैं तो उसका ये पर्पस होना चाहिए कि वहाँ पर वो दिखे कि वो अच्छे से हम उस कंटेंट को यूज़ कर पा रहे हैं। देन मूविंग ऑन टू अनदर पार्ट ऑफ स्पेसिफिकेशन इटसेल्फ इज प्रैक्टिकल कंसिडरेशन। तो अभी हमने देखा था कि कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम कुछ फैक्टर्स को देख रहे थे, अब हम इसकी कुछ प्रैक्टिकल कंसिडरेशन देखते हैं। जैसे कि बजट, बीइंग रियलिस्टिक अबाउट व्हाट योर बजट सपोर्ट्स लेट यू अचीव द क्वालिटी यू वांट विद इन दैट बजट।
बजट हमें देखना पड़ेगा डेफिनेटली सबसे पहले तो, कि हम अपने मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट को अगर बनाने वाले हैं तो उसमें बहुत सारे हमें रिक्वायरमेंट्स चाहिए होगी। जैसे कि एनिमेशन चाहिए तो उसके लिए सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे, सॉफ्टवेयर पर्सनल्स भी चाहिए होंगे जिनको वो प्रॉपर तरीके से रन करना आता हो। तो बजट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। हमें देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में जो हम मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं उसके लिए हमारे पास अप्रोप्रिएट बजट होना चाहिए, या कस्टमर अगर चाहता है उसे इकोनॉमिक बनाना तो वो इकोनॉमिक हम उसमें चीज़ें यूज़ करें, ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें यूज़ ना करें। देन शेड्यूल, जो भी हम अपना प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं उसमें हमें देखना पड़ेगा कि कितना टाइम लगेगा। यूज़र के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग या उसकी स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग हमें उसे ऑन टाइम बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमें ज़्यादा टाइम उसमें लग रहा है तो हमें देखना पड़ेगा कि हम उसमें ज़्यादा भी इफ़ेक्ट्स को ना दें, अपने कुछ इफ़ेक्ट्स को हम उसमें कम कर सकते हैं। वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ समवेयर। Then resources, depends on what kind of title we are creating. Resources must be kept in mind as we plan the scope of the project. हमें देखना पड़ेगा किस तरीके का प्रोजेक्ट हम तैयार कर रहे हैं, उसी के हिसाब से हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, अगर हमें अगर हमें एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए हम कोई चीज़ बना रहे हैं जहाँ पे हमें रियलिस्टिक वीडियो की भी ज़रूरत पड़ सकती है। फॉर एग्जांपल, एडवर्टाइजमेंट हम ले सकते हैं, शॉपिंग साइट हम बना रहे हैं तो उसके लिए हमने कोई एडवर्टाइजमेंट भी क्रिएट कर दिया जो हम अपनी एप्लीकेशन में इनबिल्ट कर रहे हैं, तो वो भी एक तरीके का रिसोर्स ही हो गया। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे प्रोजेक्ट से मैच करता हुआ रिसोर्स को हम यूज़ कर रहे हों। Then what are the different roles and responsibilities of different personnel? So producer is there जो कि डेवलपमेंट में और प्रोजेक्ट को मैनेज करने में हेल्प करता है। पूरी प्लानिंग में जो सारी चीज़ें आ जाती हैं कि कब तक बन जाएगा, कितना बजट यूज़ होगा, क्या क्या चीज़ें लगेंगी, तो ये सब आ जाता है। देन राइटर और कंटेंट एक्सपर्ट रिसर्चेस द टाइटल, हेल्प स्टोरी बोर्ड इट, यानी कि हमारा प्रोजेक्ट का जो एक्चुअल टाइटल है, यानी कि जो हमारा एक्चुअल में प्रोजेक्ट बन रहा है वो किस बेसिस पे बन रहा है, तो राइटर या कंटेंट एक्सपर्ट को उसके स्टोरी बोर्ड करना पड़ेगा। स्टोरी बोर्ड क्या है? स्टोरी बोर्ड आर अ गुड ऑर्गेनाइजिंग टूल टू कोऑर्डिनेट ऑल द डिजाइन, कंटेंट एंड नेविगेशनल कंसिडरेशंस, कि बेसिकली हम कहाँ पर जाते हैं, किस पर्टिकुलर मूव ऑब्जेक्ट पर हम मूव कर पाते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, किस तरीके से एक डायरेक्शन हमारे प्रोजेक्ट को मिलती है। सो बेसिकली ये देखना। देन एडिटर और प्रूफ रीडर रिव्यूज ऑल द रिटन मटेरियल, जो भी हम अपने रिटन कंटेंट यूज करने वाले हैं वो एडिटर और प्रूफ रीडर हैंडल करेंगे। देन इंटरफेस डिजाइनर वुड बी हैंडलिंग जो भी हमारा मल्टीमीडिया कंटेंट रहेगा, जैसे ग्राफ्स हो गया या कलर्स या टेक्स्ट हम यूज़ करने वाले हैं, तो जो भी हमारा ग्राफिकल डिजाइनिंग का पार्ट रहेगा बेसिकली डिजाइनिंग पार्ट को हेल्प करते हैं। Then illustrator or animator that would create graphical parts of the title such as screen elements or buttons, तो जो भी हमें एनिमेटेड पार्ट यूज़ करने हैं, जैसे कि कोई गेम में हम बटन्स का यूज़ करते हैं, वर्चुअल बटन्स का, तो वो सब हमारा इलिस्ट्रेटर या एनिमेटर हैंडल करेगा। ऑडियो टेक्नीशियन, नाम से ही पता चल रहा है, दैट विल हैंडल ऑल द ऑडियो पार्ट। देन वीडियो टेक्नीशियन दैट विल हेल्प इन एडिटिंग और प्रोसेसिंग द वीडियो कंटेंट। प्रोग्रामर, हमें पता है जो कोड लिखेगा, बेसिकली जो भी हम अपने कंटेंट को, एलिमेंट्स को हम अपने प्रोजेक्ट में बिल्ड करने वाले हैं उसको किस तरीके से कहाँ पर सेट करना है, तो प्रोग्रामर हैंडल करेंगे। एंड देन टेस्टर दैट विल वेरीफाई ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द टाइटल वर्क्स करेक्टली, कि हमारा जो भी हमने जितने भी एस्पेक्ट्स उसमें जितने भी एलिमेंट्स है, जितने भी पार्ट इंक्लूड किए हैं वो ठीक से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारे पास हम मल्टीमीडिया एप्लीकेशन बना रहे हैं वो मैक और विंडो प्लेटफॉर्म में किस तरीके से हमारी हेल्प करता है। सो मैक में क्या आ जाता है, इट इंक्लूड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर डिजिटाइजिंग एंड एडिटिंग वीडियो एंड प्रोसेसिंग डीवीडी डिस्क। मैक प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड कराता है कि जो भी हम अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को रन करा रहे हैं उसे प्रॉपर्ली रन करा पाए मल्टीमीडिया के एस्पेक्ट से। हैज़ अ गुड इन बिल्ट ऑडियो एंड हाई क्वालिटी ग्राफिक कैपेबिलिटी, तो साथ ही हमें मल्टीमीडिया एलिमेंट्स को भी सपोर्ट करेगा, दैट इज गुड वॉइस एंड ग्राफिक क्वालिटी, मेक मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ईजियर एंड स्मूदर। साथ ही मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट हम इजीली डेवलप कर सकते हैं। ऑल द मॉडल्स ऑफ मैक कम विद द लेटेस्ट मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। मैक कैन ऑल्सो रन द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसमें कुछ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स भी हम रन कर सकते हैं। देन कम्स विंडोज प्लेटफॉर्म, इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेंडर न्यूट्रल कंपोनेंट्स दैट आर टाइड टुगेदर बाय द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें बहुत सारे डिफरेंट वेंडर का एक कलेक्शन आ जाता है जिसे हम एक साथ
विंडोज़ अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करा सकते हैं। इनिशियली फोकस्ड ऑन बिजनेस कंप्यूटिंग एंड वाज नॉट सूटेबल फॉर मल्टीमीडिया। पहले हम इसको बिजनेस ओरिएंटेशन से देखते थे और मल्टीमीडिया कंटेंट इसमें ज़्यादा सूटेबल नहीं होता था। However, it is now easier to find multimedia hardware and software for Windows as compared to the Mac. लेकिन अब अगर हम देखें तो विंडोज़ प्लेटफॉर्म हमारा ज़्यादा अप्रोप्रिएट है मल्टीमीडिया कंटेंट के लिए एज कम्पेयर टू मैक. So that is all for the part of a second unit. Another part of second unit we will discuss in the next video. Thank you.